હાય, હું આરજે શ્રેયા. આજે સેલિબ્રેશન સોલ્યુશન્સ ઓફિશિયલના પેજ પરથી હું આરજે શ્રેયા આજે અહીંયા લાઈવ આવી છું અને આજે આપણા લાઈવમાં સ્પેશિયલ એક ગેસ્ટ આપણી સાથે જોઈન થવા જઈ રહ્યા છે, જેમની સાથે આજે આપણે ઘણી બધી વાતો અને એમની લાઈફ જર્ની વિશે આપણે એકચ્યુઅલી જાણવાના છે. સો અહીંયા મારી સાથે સૌથી પહેલાં તો બધાને હાય હેલો કરવાનું, આપણે જે ગ્રીટ કરવાનું ચાલુ કરીએ છીએ. તો સેલિબ્રેશન સોલ્યુશન્સ ઓફિશિયલના જે ઓનર છે ત્રિવિધ કપડિયા, તે આપણી સાથે અહીંયા જોડાઈ ચૂક્યા છે. હાય ત્રિવિધ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ચાન્સ કે હું આ જે આપણા જે સેલિબ્રિટી છે એક્ટર્સ મીટઅપ સિઝન 2 જે છે તેમાં આજે આ સેકન્ડ લાઈવ છે. 5:30 વાગે એક લાઈવ તમે જોયું હતું હેમાંગ દવે સરની સાથે, આરજે રાહેલનું. હવે હું એક્ટર જે છે એક્ટ્રેસ જીનલ બેલાની, એમની સાથે આજે લાઈવ જવા જઈ રહી છું ને બસ એમની જ રાહ જોઈ રહી છું કે જલ્દી અહીંયા લાઈવ આવે અને એમની લાઈફ જર્ની વિશે આપણે ઘણી બધી વાતો એમની પાસેથી જાણીએ. ફિલહાલ હું સુરતમાં છું. તમે બધા અલગ અલગ અગર સિટીઝમાંથી હોવ અને અગર સુરતમાં જ હોવ તો બધાને જ આઈડિયા હશે કે COVID-19નો હાલ અત્યારે આપણા દેશમાં અને સુરતમાં ખાસ કરીને કેવો જઈ રહ્યો છે. ગ્રાફ આમ જઈ રહ્યો છે, આમ જવાને બદલે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીવન કે પ્લીઝ જેટલા પણ પ્રિકોશન્સ લેવાના છે તો પ્રિકોશન્સ તમે બધા લેજો અને એની સાથે સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરજો અને ખાસ તમારું જે માસ્ક છે તે પહેરજો. સો ફાલ્ગુની પણ અહીંયા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે અને આઈ એમ જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર જીનલ બેલાની. એમણે ઘણી બધી મૂવીઝ કરી છે. અગર તમે ગુજરાતી મૂવીઝ જોવાના અગર શોખીન હોવ તો તમને આઈડિયા હશે, તમે એમને ઘણી બધી મૂવીઝમાં જોઈ હશે અને ખાસ કરીને વધારે પડતા રોલ એમણે રોમેન્ટિક કોમેડી મૂવીઝ હોય એ ટાઈપના રોલ એમણે વધારે કર્યા છે. સો એક મૂવી આવવાની હતી કે આવી ચૂકી છે, વિક્કીડાનો વરઘોડો, યસ, મલ્હાર ઠાકરની સાથે. સો એમાં આપણે કદાચ એમને જોયા હશે બિકોઝ આ લોકડાઉનના કારણે અને હું પોતે વેબ સિરીઝ થોડી ઓછી જોઉં છું, મને ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો છે. બટ મને એક અત્યારે વાત એવી ખબર પડી છે કે જીનલ જે છે તે પોતે અત્યારે એક વેબ સિરીઝમાં કામ કરી રહ્યા છે. કઈ વેબ સિરીઝ છે, શું છે, એ બધું આપણે એમની પાસેથી તો જાણશું જ. સો ફાઇનલી આપણી સાથે અહીંયા જીનલ જોડાવા જઈ રહ્યા છે. હું બસ એમની જ વેઇટ કરી રહી છું અને ત્યાં સુધી થોડી ઘણી તમને એમના વિશે હું ડિટેલ્સ આપી દઉં કે એમણે એમની એક્ટિંગ કરિયરની શરૂઆત તો એકચ્યુઅલી કહેવાય ને કે લોકો નાનાથી મોટામાં આવે. જીનલનું છે ને સૌ કંઈક ડિફરન્ટ જ છે કે લાઈક થિયેટર્સ હોય એમાંથી લોકો મૂવીઝમાં જાય. જીનલ મેડમ ડાયરેક્ટ મૂવીઝમાં આવ્યા છે અને એ જર્ની વિશે તો આજે હું ખાસ એમની પાસેથી જાણવાની જ છું. સો આઈ એમ જસ્ટ વેઇટિંગ કે જસ્ટ આવી જાય જલ્દી. અને એમણે એજ્યુકેશનમાં માસ કમ્યુનિકેશન કર્યું છે. માસ કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન યોર લાઈફ. અગર તમે કોઈક મીડિયા લાઇનમાં જવા માંગતા હોવ, રેડિયો લાઇનમાં જવા માંગતા હોવ કે એક્ટિંગની લાઇનમાં જવા માંગતા હોય કે જર્નલિસ્ટ બનવા માંગતા હોવ, સો એમને શું બનવું હતું, એમનો ટ્રિગર પોઈન્ટ કયો હતો, કયા ટાઈમ પર એમણે ડિસાઇડ કર્યું કે મારે એક્ટિંગ કરિયરમાં જોડાવું છે, એ બધી વાતો આજે ઘણા બધા સવાલોની સાથે ને થોડી ઘણી ગેમ્સની મસ્તી મજાકની સાથે આજે આપણે અહીંયા જોવા જઈ રહ્યા છે. સો એક મૂવી ના 2019માં પણ આવી હતી, ધનુષ જે સાઉથના સુપરસ્ટાર તરીકે ઓળખાય છે, રજનીકાંતના જમાઈ. તે બોલિવૂડ મૂવી નિમ્મોમાં પણ જેમને પ્રોડ્યુસ કર્યું છે આનંદ એલ રાય, કલર યેલો પ્રોડક્શન્સ, તેમાં પણ આપણે જીનલને જોઈ હતી. ને ગુજરાતી મૂવીઝની વાત કરું તો ઘણી બધી ગુજરાતી મૂવીઝ એમણે કરી છે, યસ. ને જે ગુજરાતી મૂવીઝ છે તે કદાચ તમે એમને જોઈ હોય. સૌથી પહેલાં એક જ્યારે તમે ફેશન મૂવી આવ્યું હતું પ્રિયંકા ચોપરા અને કંગના રનૌત વાળું, તે ફેશન મૂવીના ઉપરથી એક દૂરદર્શન પર સિરિયલ આવી હતી, છુપાઉં કેસે લાગા ચુનરી મેં દાગ. તેમાં જીનલ બેલાનીએ સરસ મજાનું લીડ ફિમેલનું કેરેક્ટર પ્લે કર્યું હતું. સો જીનલની રાહ જોવાઈ રહી છે. અહીંયા કાન્હા પટેલ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, ક્યાંથી છો તમે? કાન્હા પટેલ ક્યાંથી છે, કઈ સિટીથી બિલોંગ કરો છો? સુરતથી બિલોંગ કરો છો ને કયા એરિયામાં રહો છો અગર સુરતમાં હોવ તો? ત્રિવિધ, યુ ટેલ મી, તમે કયા એરિયામાં છો? તમે કયા એરિયામાં અત્યારે છો ને આ લાઈવ અત્યારે જોઈ રહ્યા છો? ફાલ્ગુની મારી સાથે છે. ઓકે, યુ આર ફ્રોમ વલસાડ. ઓકે, આ વખતે વલસાડની કેરી ખાવા મળી કે નહીં લોકડાઉનમાં? સો મારી સાથે અહીંયા ડૉક્ટર ગજાનંદ થાને પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હેલો સર, હાવ આર યુ? સેલ્યુટ टू एवरी डॉक्टर्स एंड द फ्रंट लाइन वॉरियर्स कि जो इस पैंडमिक में
फ्रंट लाइन में रह के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं. सो सैल्यूट टू यू सर. And all the doctors, police officers, and all the dignitaries जो आगे आके अपना काम बखूबी करते जा रहे हैं. सो यहाँ पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीनल की, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर कि वो जल्दी जल्दी यहाँ पे ज्वाइन हो हमारे साथ. अच्छा, कान्हा बता रहे बोज लॉकडाउन में केरी खाधी છે. અરે વાહ 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 વાહ. વલસાડના એક તો ચીકુ ને વલસાડની કેરી હાફૂસ ખાસ બહુ જ ફેમસ હોય છે. તો અહીંયા મારી સાથે एंजल 1919 પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. હાવ આર યુ मैम, क्या चल रहा है? વેલ, સો આજે આ ઘણા બધા એકચ્યુઅલી મારી નજર અત્યારે મારા સવાલો તરફ છે. ઘણા બધા સવાલોની સાથે અહીંયા હું જોડાઈ ચૂકી છું. ओके, एग्जाम का टेंशन. एंड मेरे साथ यहाँ पे शादी तड़का इवेंट के ओनर ऑफिशियल ध्वनि मांगोकिया भी जुड़ चुके हैं. हाय ध्वनि, हाउ आर यू? यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, જેમની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે, તે જીનલ બેલાની, ધી વન એન્ડ ઓનલી એન્ડ ધ વેરી ફાઇનેસ્ટ એક્ટર ઓફ બોલિવૂડ એઝ વેલ ગુજરાતી મૂવીઝ, તે આપણી સાથે અહીંયા જોડાઈ ચૂક્યા છે. એન્ડ વી આર ગોઈંગ ટુ કનેક્ટ સૂન. અને બસ એમની સાથે ઘણી બધી વાતો આપણે કરવા. Here we go and presenting Jinal Belani. She is here with us. Hello. Hi. How are you? Hi. I'm good. How are you? I'm fine. Okay. So in Mumbai or in Gujarat? હું મુંબઈમાં છું. Okay, Mumbai. How much does double આવી રહ્યો? ના. Okay. Okay. So કેવી ચાલી રહી છે આ લોકડાઉન અનલોકમાં તમારી સિચ્યુએશન? Like so far, like for few days I was really busy because અમે લોકોએ પેલું એક મેં અને માનસીએ મળીને એક સિરીઝ માઇક્રો સિરીઝ બનાવી હતી. હવે એક પત્યું તો now suddenly અમે લોકો blank થઈ ગયા now what to do because those days were so busy and now suddenly I was like અરે હવે so I'm just trying to come out of it, just workout કરીને આવી થોડી વાર પહેલા. Like tennis All ઉપર. right. અને એવું બધું just trying to use my time now. Very nice. પાણી વાણી પી લીધું? Yeah, green tea પણ પી લીધી. Like post workout it is Wow, very that's a important. I have my hot water with me. Oh wow, very nice. Yeah, it is very important right now. હા. So, celebration solutions તરફથી સૌથી પહેલા તો તમને આ પેજ પર વેલકમ જીનલ મેમ. એન્ડ ઘણા બધા સવાલો સાથે I am ready to shoot many questions to you. So, are you Super. ready? I am ready, yes, yes. Alright. So यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, सेलिब्रेशन सॉल्यूशंस पेज के भी फैंस हैं, वो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वन एंड ओनली जीन्स मिलानी जी जुड़ चुके हैं. ओके, सी माय वॉइस इज इक्वली ट्रिगर की यहाँ पे मुझे कमेंट आई है. सी दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. Okay, but Earlier, I ma'am. don't know. I can hear it very clearly. Like I can't hear any so or anything like that. Alright. Should I actually bring my microphone? Yeah, I think that will help. Alright. So मैम सबसे पहले तो यू टेल मी कि फिल्में जो है वो आपकी लाइफ में कैसे आई? लाइक सबकी लाइफ में एक टाइम आता है, वैसा होता है कि हमें मतलब अपने करियर के लिए डिसाइड कर लेना होता है कि अब मुझे इस और जाना है, उस और जाना है. तो यू टेल मी कि वो ट्रिगर पॉइंट कब था कि सब आपने डिसाइड कर लिया मुझे जाना है एक्टिंग लाइन में, मुझे फिल्म लाइन में जाना है? I think I was very young when I thought that I want to become an actor. It was like I don't even remember उतना young. So it was like always a dream कि actor ही बनना है. And I don't know if it is about being a Taurian or what. So ऐसा होता है कि एक बार जो ठान लिया फिर that just doesn't change. Like जिद्दी personality. So it never changed. And once when I was a kid, when I thought that ये बनना है तो फिर वही था दिमाग में.
वाओ। ऑप्शंस थे कि एमबीए करूंगी, ये करूंगी, बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल ब्रेन जो होता है वो आपको बोलता रहता है कि यू नीड टू डू यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, बट समवेयर इन योर हार्ट इट वाज ऑलवेज लाइक इन माय हार्ट इट वाज ऑलवेज क्लियर कि एक्टर ही बनना है. सो ओके। या. सो फाइनली आपको जो बनना था वो तो आप बन ही चुके हैं, और बहुत बेहतरीन एक्टर आप दिन ब दिन बनते जा रहे हैं. कैन यू टेल मी कि जब आपने एक्टर बनना डिसाइड किया था, हाँ. जब आपके इनिशियल डेज थे, तो कितना हार्ड था उस चीजों को, कितना हार्ड था? Your voice, in between videos stopped. So I think your question is how difficult initial days were, right? Yes, how hard Yeah. it was. Like, how were the initial days, and what were the hard things, learnings? It was hard. It was hard. I won't say that it wasn't hard, but आपको लगता ही नहीं है वो हार्ड जब इतना अंदर वो होता है ना पैशन और व्हाट यू से कि वो कुछ करना ही है लाइक एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो Hmm. नाउ व्हेन यू लुक बैक एंड यू रियलाइज अरे हाँ यार मतलब किया है मेहनत, बट एट दैट टाइम यू जस्ट डोंट फील लाइक दैट कि आपको आप हार्ड वर्क कर रहे हो या एनी काइंड ऑफ थकान या इट्स लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, वो सब नहीं आता. हाँ दुख होता था जब रिजेक्शन होता था और लाइक बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज एक्टिंग शुरू करने से पहले और अदरवाइज भी जब हम दुनिया में बाहर जाते हैं उसके पहले हमने बहुत छोटा लेवल ऑफ कंपटीशन देखा होता है स्कूल का या Okay. कॉलेज का या इंटर कॉलेज मैक्स टू मैक्स. बट यहाँ पे लाइक पूरे कंट्री से लोग आए हुए हैं. ये वो भी लड़कियां हैं कंपटीशन में जो मिस इंडिया में फाइनलिस्ट थी वो भी आपके साथ सेम ऑडिशन पे बैठी है और आप उनको देख के हो जाते हैं लाइक अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. वो वाला वो सब डिफिकल्टीज थे बट आई वोंट से इट वाज हार्ड. इट इज हो गया ऐसा एंड एनीबॉडी कैन डू इट. सजेशन आया है नीलू जी का, गुजराती छो तो गुजराती बोलो. डेफिनेटली वी आर प्राउड गुजराती सर, बट काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको गुजराती समझ नहीं आती है, जो महाराष्ट्र से भी है. तो आई थिंक हमारी कॉमन लैंग्वेज है, और गुजराती जो हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन वो गुजराती नहीं समझ सकते. एनीवे, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम. So moving towards our next question, and which कि अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लेके आपके पास आई अप्रोच करने के लिए कि आप मेरी मूवी में काम कीजिए, तो वो क्या मतलब आपकी थिंकिंग रहेगी कि आप क्या चीज देख के उस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे? क्या क्या चीज आप देख के फिल्म सिलेक्शन पार्ट मतलब आपका क्या रहता है? इट शुड कनेक्ट विथ मी द सब्जेक्ट और जो भी द स्क्रिप्ट है इट शुड कनेक्ट मी हियर. दूसरा अगर वो फिल्म कोई मैसेज दे रही है तो वो क्या मैसेज दे रही है. लाइक देयर वाज अ फिल्म जो आया था विच वाज शोइंग वर्किंग वुमेन इन बैड लाइट. तो मैंने मना करा बिकॉज आई डिडंट वांट टू गिव अ मैसेज वट एवर लिटिल ऑडियंस. आई एम सो सॉरी, हाँ. कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है शायद. Yeah, there's some problem. Yeah. Hello, hello, hello. Am I I audible? can see you. Yeah, I can see you now. Yeah. Alright. So I was on that part कि आप फिल्म सिलेक्शन का जो पार्ट रहता है, और अगर मैं आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके आऊँ तो आप कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे? Yeah. So the one, it should have a connection. Dusra, what message it gives. Like just I said that there was a film which had a message जहाँ पे working women को वो लोग बुरी लाइट में दिखा रहे थे. तो I was quite not happy with it because I was like कि बड़ी मुश्किल से women are working now. बड़ी मुश्किल से they are independent and we just can't show them in the bad light. Like so what message it gives. और डायरेक्टर्स की सेंसिबिलिटीज कुछ चीज़ों से आपको समझ में आती है कि हाउ एज अ स्टोरी टेलर हाउ सेंसिबल दैट पर्सन इज नो मैटर न्यू और एक्सपीरियंस्ड बट
how sensible that person is. ये तीन चीजें अगर हो तो I would love to do a film. All right. So it is pretty well the process, the part you choose the film. But इसमें मतलब सबसे ज्यादा फनी चीज क्या रहती है? The entire process. आप फिल्म सेलेक्ट करते हो उससे लेके लोकेशन और उसके बाद फिल्म रिलीज होती है, उसके बाद की सक्सेस या फेलियर, क्योंकि हम दोनों बाजुओं को देखेंगे कि जहाँ सक्सेस है, लाइक कॉइन हैज अ टू साइड्स, तो जहाँ पे सक्सेस है वहां पे कभी कभी फेलियर भी होता ही है। तो अगर फिल्म चली तो चल ही पड़ी है, बट लाइक वो उस जर्नी के बारे में अगर आप शेयर करेंगे। I don't like. I learned. I'm a, if I may say so, I'm a good learner. तो जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, it didn't work as much as I had expected. It is still being watched by people, but it didn't work as much as I had expected. तो उसके बाद I don't know. I kind of learned how to detach myself once the work is done. Everybody needs to detach themselves from the results. So अभी मैं वो उसी से सीख गई कि मेहनत कर लो, उसके बाद as we say कर्म कर फल की चिंता मत कर. So I learned it from there. And अब मुझे अब कोई भी रिलीज के पहले ना मैं एक्साइटेड होती हूँ ना मैं वरिड होती हूँ. आई एम जस्ट एट पीस एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब वरीड नहीं होते हो, आप एक्साइटेड भी नहीं होते, बट अगर आप कोई फिल्म सेलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद उस कैरेक्टर में पूरा आपको हार्ड मतलब घुस के उसके लिए आपको पूरा मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है उस कैरेक्टर में आने के लिए, तो कभी कभी ऐसा रहा है कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आ चुका उस कैरेक्टर को प्ले करने में? नहीं, कभी नहीं लाइक कि यार मतलब ऐसे कुछ कुछ ऐसे चैलेंजिंग रोल, वेदर इट्स योर मूवी, वेदर इट्स योर एनी वेब सीरीज और कोई भी आपका सीरियल जो डेली सोप आपका आता वैसे था? होता है वो फिजिकल आपको स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो होता है. देयर वाज अ पॉइंट जब मैं एक टीवी शो कर रही थी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा होना था, तो मैं इतना गुस्सा हो गई कि मुझे सेट पे थोड़ा चक्कर आ गया था. एक्चुअली लिटरली माय हेड स्टार्टेड स्पिनिंग. Oh my God. सो वो Oh my God. वो वैसे प्रॉब्लम्स हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इट हैड अफेक्टेड मी मेंटली. वो नहीं. दैट आल्सो आई थिंक वी यू आल्सो बीइंग इनटू मीडिया इंडस्ट्री वी नीड टू लर्न दैट. आई एम श्योर यू आल्सो आपने भी सीखा होगा वो डिटैच कैसे हो जाने का. Yes. यू नो. बट ऐसा ऐसा मतलब आपने जो ये बात बताई कि बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सा आ गया और मतलब उस कैरेक्टर के लिए, तो उसके बाद सॉरी, तो उसके बाद कभी ऐसे ऐसे ऐसा गुस्सा आया है आपको कभी रियल भी? लाइफ में नहीं. वैसे आपके फेस से ही लगता है दैट आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं कि आपको कभी ऐसे गुस्सा है. यू आर रियली वेरी स्वीट मैम, रियली. ओके, तो आपने मास कम्युनिकेशन किया है मुंबई की मीठीबाई कॉलेज से, तो और उसमें भी आपने स्पेशलाइजिंग किया है एडवर्टाइजिंग में, और आपने काफी सारी लाइक डव की एड से आई गेस शुरू किया था. Yeah. और उसके बाद आपको बहुत सारी सारीज की एड मिली है एंड डव केयर एंड बहुत सारी एड्स में आपने काम भी किया है. तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट कि मतलब स्टडिंग फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेल्प्स कि उस स्टडी को कोई आप सब्जेक्ट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके आगे करियर में कितना आपको ज्यादा हेल्प कर पाता है? हाँ, स्टडीज डेफिनेटली हेल्प. आपको जब एक चीज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव पता हो तो यू बिकम लाइक द आर्ट बिकम्स आर्ट इज इन योर कंट्रोल. देन आप उसको Okay. बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हो. जैसे कि जब मैं असिस्ट कर रही थी, जब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एडिटिंग और वो सब आई लर्न एडिटिंग. मैंने असिस्ट भी करा, तो जब वहाँ पे एक्टर्स को देखती थी तो ये भी सीखा क्या करना चाहिए, ये भी सीखा क्या नहीं करना चाहिए. बहुत Okay. सारे लोग सेट पे मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, स्टाफ के साथ. तो जब मैंने वो साइड की जर्नी देखी हुई थी तो आई जस्ट न्यू हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू गेट द सक्सेस और एनीथिंग इन योर हेड.
और जब एडिटिंग और वो सब सीखा हुआ था तो आइडिया आ जाता है कि ये यहाँ से कट हो जाएगा या ये ऐसे खड़ी रहूंगी तो बेटर प्रोफाइल आएगा। वो सब छोटी छोटी चीजें इट हेल्प्स। और दूसरा इट हेल्प्स वेयर जब ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें हो रही होती है ना, तब आपने अगर वो चीज पढ़ी हुई तो हो तो इस इस एड में कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई आपकी की हुई प्ले की हुई एडवर्टीजमेंट आपने जो प्ले की है, जो आपने एडिटिंग सीखा हुआ है, कहाँ से कट करना है, कहाँ से क्रॉप करना है, कहाँ से ट्रिम विम, जो भी हम लोग करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस चीज को अपने हाथ में लेती तो इसको और बेहतरीन बना पाती? बहुत कम ऐसा होगा। Okay. So, share some your bad and good experience. Like every coin has two sides, good and bad. Hello. I again can't hear you. Hello. So, share some of your good and bad experiences in your field. कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं. हाँ, I'll just share just a second, huh? Just a second. I'll just open the door. Yeah. So, Yeah. good experience wise, I can say there's been many good experiences. Like people have been so nice and kind, and they have been so supportive. And if they see that this person genuinely wants to work hard, लोग बहुत आप लगता है दुनिया बुरी है, बट अगर आपको जेन्यूनली अब मेहनत करके आगे आना चाहते हो तो लोग दे कैन लाइक पीपल कैन बी एंजल्स, लाइक बहुत सपोर्ट मिलता है। और बुरे में आई कैन जस्ट से दैट जब आप नए होते हो तो ऐसा होता है कि पीपल माइट ट्रीट यू एज यूर इनविजिबल, आप हो ही नहीं, आपको शायद इग्नोर करे। या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आप ऑडिशन पे जब पहुंचते हो एंड लाइक आई स्टे वेरी फार फ्रॉम द स्टूडियोज, लाइक अंधेरी में जहाँ ऑडिशंस और सब होता है। आई स्टे बोरिवली, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, सो आई स्टे विद पेरेंट्स। तो ऐसा बाकी जो बाहर से लोग आते हैं वो लोग सब आसपास में ही घर लेते हैं, बट because I'm born and brought up here, I don't have an option to shift somewhere else. तो ऐसा होता था कि अब बड़ी मुश्किल से बोरीवली से अंधेरी गए हो बस एक ऑडिशन के लिए, एंड देन दे आर लाइक सॉरी आप यू नॉट फिट, आप ऑडिशन नहीं दे सकते, या आप आपकी हाइट कम है। ऐसे वाले भी होते हैं। उस वक्त बहुत ऐसे दुख होता था, अरे यार मतलब इतनी अब पूरा मेकअप है सब, लाइक यू गेट रेडी एंड यू गो फॉर द ऑडिशन and you spend money also to go there, and like because you're struggling, you're like आपको ऐसा लगता है यार ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है, तो वो सब होता था। बट उसके अलावा आई डोंट सी एनी बैड मेमोरीज अभी में। आई डोंट कंसिडर दैट एज बैड मेमोरीज, आई कंसिडर दैट एज अ लर्निंग प्रोसेस। So it taught you something. या That's amazing. That's amazing. So आपकी इंस्पिरेशन कौन है? Like जब भी आप ऊपर देखते हो, खुद से किसी को ऊपर, तो like, who's your role model? सी फ्रैंकली मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था एंड एट दैट टाइम आई गॉट माई आंसर। मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, बट उस वक्त भी मेरे दिमाग में मेरे फ्रेंड्स जो है इन रियल लाइफ, they came, like few of them are married, few of them have kids, they are working and have easily they're handling everything. Like I stay with my parents and they do so many things for me abhi bhi. तो आई इंस्पायर ऑन अ जेन्यूनली, ऐसा नहीं कि मुझे किसी और का नाम नहीं लेना। आई अडोर सो मेनी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, बट जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो एक्चुअली ये लोग कर रहे हैं यार इतना इजीली, घर बच्चे काम और हमेशा चेहरे पे स्माइल के साथ दे हैंडल ऑल दिस। तो मैं उनको देखते हुए मुझे लगता है मुझे ऐसा बनना है, मल्टीटास्कर एंड स्माइलिंग। Wow. या Jinal, I have never thought about it. कि रोल मॉडल के लिए कोई इतना सोच सकता है। I want to be a multitasker because everybody has a hero or a like nation fighter, actor, actresses in their life. But I learned something Yeah. today from you as well.
Thank you so much. And I'm one among them. You can like think about it. Like I can see that. Yeah. Even I'm a multitasker because I have a daughter, I have family, I have. Oh, wow. So thank And you. you're smiling. So Yeah. yes, I am smiling. So जीनल बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं उनकी जर्नी शुरुआत होती है थिएटर से। कोई भी थिएटर्स उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद वो लोग सोचते हैं मूवीज में जाऊंगा या जाऊंगी। आपने मुझे लगता है थिएटर्स नहीं किए हैं सीधा आप मूवीज में आए हैं फिल्म में आए हैं तो क्या वो कोई डिफरेंस इट डज मेक एनी डिफरेंस। मैंने थिएटर किया था और इनफैक्ट मैंने बचपन में भी किया है थिएटर रेडियो प्रोग्राम्स किया है कॉलेज में भी मैंने थिएटर किया हुआ है मतलब कॉलेज कंपटीशन एंड ऑल उसके बाद भी मैंने 2 प्ले किए बट मैंने बहुत प्रैक्टिकली सोचा नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस थिएटर बट मेरा प्लस और माइनस मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया तो मुझे जो रोल्स करने थे वो थिएटर्स में शायद मुझे मिलने में बहुत टाइम लग जाता क्योंकि थिएटर में सीनियरिटी का बहुत वो होता है वी ऑल शुड रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स और एड्स और उसमें मुझे वो सब मिल रहा था मेन गर्ल या वट एवर यू से दूसरा थिएटर्स जो है वो गले का मीडियम है और मेरा गला उस वक्त बहुत कमजोर था मैं जोर से नहीं बोल पाती थी और मेरा प्लस पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखें हैं जो एक्सप्रेसिव है जो थिएटर में किसी को दिख नहीं पाती थी बहुत दूर से होता था सो आई थॉट आई शुड माई एक्टिंग विल बी मोर सूटेबल फॉर कैमरा एंड रेदर देन थिएटर और थिएटर में कभी भी करना है मुझे आगे भी क्योंकि इट इज सच अ ब्यूटिफुल मीडियम इट इज एन एक्टर्स मीडियम दे से सो बट उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए फिलहाल ये मीडियम ज्यादा अच्छा रहेगा तो आई शिफ्टेड 2 प्ले करके आई शिफ्टेड कंप्लीटली टुवर्ड्स टेलीविजन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म्स So how was your first experience? जब I guess ये दूरदर्शन पे आपकी सीरीज स्टार्ट हुई थी छुपाऊं कैसे धागा चुनरी की दाग फैशन मूवी के ऊपर इंस्पायर होके you like see life. Tell me something about it. Okay. तो बीच में आई थिंक स्टॉप It's हो गया fine. होगा हाँ Fine, fine. तो वो शो का एक्सपीरियंस इज वेरी ब्यूटीफुल मैं पहली बार उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत किया था बट एक एक जॉब जो होता है ना जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक जगह पे जाते हो रोज एक जगह पे जाते हो रोज कुछ लोगों को मिलते हो वो फन हमेशा बीइंग एन एक्टर मिस होता है क्योंकि अगर आप फिल्म करते हो तो वो 30 डेज मैक्स टू मैक्स 45 डेज शूट ओवर है देन अगर आप ऐड करते हो तो 2 दिन में शूट खत्म है तो वो एक रेगुलरिटी जो होता है वो मुझे बहुत मिस होता था कि यार ऐसा एक जगह है एंड तो वो शो से वो मिला था कि आई नो एवरी मॉर्निंग वेर एम आई गोइंग क्योंकि आफ्टर अ वाइल Wow. ना वो ऐसा हो जाता है कि यार अभी मुझे पता होना चाहिए मैं कहाँ लाइक मेरा दिन कैसा निकलेगा वो पता ही नहीं होता है एक्टर्स को कि आज के दिन में क्या होगा तो वो एक रेगुलरिटी आई रियली एंजॉयड एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर वो पहला ऐसा मीडियम था जहाँ पे मतलब शूट किया और 2-3 दिन बाद टीवी पे देख लिया अगर आप फिल्म करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है तो मुझे सीखने को बहुत मिला मेरे प्लस माइनस मैं रोज शूट करने के बाद 2-3 दिन बाद जब वो एपिसोड आता था तो मैं देखती थी ये गलती हुई या नहीं हुई तो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी That's amazing. That's really amazing. Like I am in like acting job. Same with me. कि अगर मैंने अगर कुछ बोली ना on air, तो उसको तुरंत सुन लो ऑन एयर कैसा साउंड तो उसके बाद वहीं से कि आप दूसरी बार वो गलती ना हो रहा हो वेरी सिमिलैरिटी बट एनीवे can you tell what do you think about future of cinema like अगर सजेशन देना चाहो तो आप क्या
फ्यूचर ऑफ गुजराती सिनेमा और फ्यूचर ऑफ सिनेमा ओवरऑल. Cinema overall and the like shift to Gujarati cinema as well. एज अगर मैं फ्यूचर देखूं तो लोगों को बहुत डर है कि शायद यू नो नेट ओवर लाइक इट डज इंटरनेट डजंट ओवरटेक सिनेमा या थिएटर्स. बट आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट इट इज बिकॉज एक फिल्म का एक्सपीरियंस होता है. अब जब आप थिएटर में जाते हो और बिग स्क्रीन और सब देखते हो और उसका जो कनेक्शन होता है वो एक अलग ही कनेक्शन है. इनफैक्ट राइटिंग और मेकिंग भी दोनों की अलग है, फिल्म की और वेब सीरीज की, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अलग होता है. फिल्म में आप लार्जर देन लाइफ और सब दिखाते हो, वेब सीरीज मोस्टली रियलिटी और उस पे ही जाता है. तो आई एम नो वेरी वरीड अबाउट द सिनेमा का फ्यूचर एंड सो द गुजराती सिनेमा का फ्यूचर ऑल्सो. Okay. Alright. अभी तक आपने जितने भी रोल प्ले किए हैं काइंड ऑफ कॉमेडी है या रोमांटिक रोल आपने ज्यादा प्ले किए हैं. ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है कि ये रोल्स आप ज्यादा प्ले कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी कि आने वाले आपके फ्यूचर में आप और करना चाहते हैं? ऐसा रीजन तो कोई नहीं है. आई हैव प्लेड डिफरेंट शेड्स एज पर वट एवर आई वॉज ऑफर्ड. लाइक जब मैंने पहला टीवी शो किया था उसमें एक बहुत क्रांतिकारी लड़की थी जो भोपाल से आती है यहाँ पे एक्ट्रेस बनने के लिए और पूरी दुनिया से लाइक लड़ती है, वैसे वाला रोल था. फिर दूसरा टीवी शो किया, वो कॉमेडी था. एक ऐसी वाइफ जो बहुत डिमांडिंग है, हस्बैंड के पास गिफ्ट चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, वैसा वाला था. सो थोड़ा अनोइंग वाला से किया है. बट हाँ, मुझे सीरियस इन दिस आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू प्ले समथिंग लाइक शाहिद कपूर इन उड़ता पंजाब, वैसा वाला रोल मेरा बड़ा मन है करने का. लेट्स सी. Wow. He is one of my favorite actors, and you took his name only to, and Yes, that movie is very nice and a very good actor, I can say. Finest actor, also yes, finest, another yes. actor, son of a finest actor. So, ये तो चली हुई मूवी की बात. अभी आपने लॉकडाउन के दरमियान वेब सीरीज लिखना, डायरेक्ट करना शुरू किया है. तो क्या एक्सपीरियंस रहा? It, क्या मतलब, मैंने और मानसी ने दोनों ने मास मीडिया पढ़ा हुआ है एंड Okay. वी वर लाइक के और कॉलेज में भी हम लोग को एक अलग फिल्म बनाना होता था जिसमें वी हैड टू मेक राइट, डायरेक्ट, एडिट अ फिल्म. थर्ड ईयर में ऐसा प्रोजेक्ट था. तो आई वाज टेलिंग हर दैट ऐसा लग रहा है हम लोग मास मीडिया का प्रोजेक्ट कर रहे हैं बट थोड़ा प्रोफेशनली जाके कर रहे हैं. दिस टाइम लाइक ऑल प्रोफेशनल्स आर वर्किंग फॉर अस. जब कॉलेज में थे Wow. तब कॉलेज के ही लोग सब हेल्प कर देते, यार तू बैकग्राउंड कर देना, यार तू ये कर देना, यार ऐसे वाला था. एट दिस टाइम ऑल प्रोफेशनल पीपल हेल्प अस. फर्क वही था, मेहनत और सब था. और इस बार हम थोड़ा और अक्ल वाले हो गए, लाइक विद द एक्सपीरियंस थोड़ा मेच्योर हो तो गए. यहाँ रियल लाइफ में रियल चीजें हो रही है. हाँ, हाँ. That's amazing. Any future project? ये वेब सीरीज जो आप लिख रहे हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, वो तो आप साथ में कर ही रहे हो. और आपने मास मीडिया पढ़ा है, एडवर्टाइजिंग में आपने डिजिटाइजेशन किया है. तो ये जो चीज है, आपने काफी सारे एडवर्टीजमेंट है, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने काफी सारे रोल, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल भी प्ले किया है. तो इन फ्यूचर कोई भी आपके फिल्म डायरेक्ट करने का प्लान है? पता नहीं, मेरे में अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है. उस वक्त अगर मुझे लगा कि मेरा उतना सेंसिबिलिटीज हो गया है कि मतलब डायरेक्ट अ होल फिल्म इज लाइक सो मेनी लेयर्स को समझना, तो शायद अगर कुछ साल बाद मुझे ऐसा लगा तो आई वुड लव टू. ऐसा नहीं आई डोंट वांट टू, बट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे में अभी उतना सेंसिबिलिटीज है कि एक साथ 10 या 100 लेयर्स को मैं हैंडल कर पाऊँ.
ऑलराइट। और जैसे हम मुझे पता है और काफी लोगों को पोएम्स लिखने का भी बहुत शौक है, हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ बात शेयर कीजिए एंड टेल मी व्हाट इज योर ओन रिटन पोएम जो आपको खुद को भी बहुत पसंद है और अभी आपको याद है और आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। um, मुझे ये वैसे याद है बट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। आई एम लिटिल शाई एंड ऑकवर्ड अबाउट इट। मैंने बहुत हिम्मत करके पोयम डाले। लाइक एक पोयम है जो मैंने डाली है, तू कुछ खास है तुझ में कुछ खास है वाली, मैंने 2014 में लिखी थी। बट अब जाके वाह। हिम्मत आई कि भाई डालनी है। तो इतना हिम्मत इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा फिलहाल कि मैं ऐसे रिसाइट भी कर दूं। बट तो या आई लव इस राइटिंग पोयम। वाओ दैट्स अमेजिंग एंड आई रियली विश कि आपकी जितनी भी पोएम्स है मैं उसको देखूं सुनूं और मुझे खुद को भी काफी इंस्पिरेशन मिले बिकॉज समटाइम्स आई राइट पोएम्स एंड वाह। समटाइम्स तो इवन जस्ट कोविड-19 के ऊपर मैंने रिसेंटली लॉकडाउन क्वारंटाइन टाइम में एक पोएम लिखी हाँ, सो विल डेफिनेटली शेयर विद यू। डेफिनेटली या आई वुड लव टू या। ये या तो आपकी आपके घर में कोई ऐसा है जिसके पास से आपको इंस्पिरेशन मिलती है लिखने की आपकी कोई घर वाले के जीन्स में से आई है सॉरी, घर वाले? आपके घर में से कोई ऐसा है जिनको पोएम या राइटिंग का शौक है और उनकी हेरिडिटी में आती है ये चीजें तो अगर आप वैसे मुझे पता है तब तक तो नहीं है। अगर कोई ऐसे मेरे जैसा छुपा रुस्तम राइटर होगा और ऐसे 3-4 साल बाद पता चले कि अरे आप भी लिखते हो वैसा। तो यहाँ वैसा पे वाला श्लोका शाह आई शी फ्रेंड एंड शी इज सेइंग शी लव्स शॉपिंग टू ओनली विथ यू श्लोका। किसको नहीं पसंद है हर लड़की को पसंद है मुझे वैसे पसंद नहीं शॉपिंग। है। मुझे सिर्फ जब जरूरत होती है तो ऐसा एक दिन निकलो और सब खत्म कर दो, ऐसा वाला शॉपिंग ज्यादा पसंद है। बट ऐसा डिलिबरेटली शॉपिंग के लिए जाना इज लाइक कंडाला आता है। इट्स सो टायरिंग। वी आर सिमिलर हाई फाइव। ये ओके सो यहाँ मैंने बोला था वैसे कि थोड़ी बहुत आप जब ज्वाइन नहीं हुए थे तो मैंने बोला था हमारे व्यूअर्स को कि जैसे ही ज्वाइन होंगे आज हम थोड़ी बहुत गेम्स भी प्ले करेंगे तो हमारे एंडिंग सेशन हम थोड़ी बहुत गेम्स प्ले करेंगे जहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सुन के जैसे ही आपको कोई वर्ड याद आ रहा है काइंड ऑफ ओके। सो वी आर गोइंग फॉर रेडी या व्हाट इज योर ड्रीम जॉब ड्रीम जॉब राइट नाउ इट इज राइटिंग। आई सो मच वांट टू राइट मोर एंड मोर मोर एंड मोर या। ओके सो अब मुझे लगता है हमें जल्दी एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर मिलने वाला है बहुत तो आई विश हॉलीवुड अच्छा बुरा आई डोंट नो, मिलने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली फेवरेट हॉबी फेवरेट हॉबी? um I love cycling actually. It used to be my hobby. अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए बंद हो गई है बट मैं बहुत साइकिलिंग करती थी। There was a point. I like reading also. Yeah. So these two things. सो कौन सी ऐसी बुक थी सॉरी ये गेम के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो कोई ऐसी बुक जो आप सबके साथ मतलब शेयर करना चाहें आप सजेशन कि ये बुक आप जरूर पढ़ें हाँ, वैसे बहुत सारी है बट there's this book called Jonathan Livingston Seagull. Okay, it's a beautiful book. Beautiful book. It's about a bird जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे उड़ना चाहता है। इतनी सी स्टोरी को स्पिरिचुअल जर्नी से लेके मतलब इतना ब्यूटीफुली रिटन बुक है। आई थिंक यू विल लाइक इट। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट यू विल डेफिनेटली लाइक इट जितना हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक। I'll give you a DM मुझे आप उसमें लिख के दीजिएगा पक्का पक्का। describe yourself in 3 words In 3 words, I'm funny, I'm kind, and I think what's my Insta says, I'm just another person. Yeah. all right morning person or night person I want to be a morning person, but अभी in between हूँ। रोज रात को मतलब ऐसा होता है कि यार जल्दी सोना है ताकि जल्दी उठ पाऊँ, बट वो कर नहीं पाती हूँ।
This is something weird, but I want to ask you that if you would talk in sleep, what would you say? My sister has caught me talking in like my sleep. मैं Oh, डायलॉग्स बोल रही थी. और वो डर गई. तो उसके बाद हाँ, उसकी शादी हो गई. उसके बाद आई डोंट नो इफ आई एम टॉकिंग इन माय स्लीप. आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो मैं अकेली होती रूम में. बट जब शादी से पहले वो बहुत बारी उसने रोका है. एक बारी उसने देखा कि मैं सपने में साइकिल चला रही थी. आई oh डोंट नो my ऐसे God. करके. So, Oh my God. लाइक लेटे हुए मेरे पैर और हाथ ऐसे साइकिल की जैसे हो रहे थे. एंड शी आस्क्ड मी व्हाट एम आई डूइंग एंड आई वाज सोते सोते ही मैंने बोला साइकिल चलाऊं छु. ऐसा. Yeah, nothing like hell, seriously. So, what is your favorite movie dialogue that inspires you a lot? वैसे अब कोई अभी फिलहाल तो वो चक दे वाला ही याद आ रहा है इंस्पायर के लिए कि ये हाउ मेनी मिनट्स आपको फिर से कोई नहीं दे सकता. और अभी 70 मिनट. जेन्युइनली 70 मिनट. हाँ. और अभी जेन्युइनली ऐसा फील हुआ है दैट टाइम इज रनिंग और हमें बहुत कुछ करना है और टाइम कम है. तो लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट. ऐसे जेन्युइनली ये लॉकडाउन से सीखा है. Wow, that's really amazing. So, another question: if you were famous, what would you be famous for? Rather than being an actor, like actor के अलावा, अगर आप famous होते तो कौन सी चीज के लिए होते? Hmm, it could have been writing. और मैं कोई कॉज ले लेती. मतलब मुझे है बहुत सारे कॉजेस के लिए काम करना है. तो मे बी वन ऑफ द कॉजेस दैट आई वुड लाइक टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. Kind of a social work, सॉरी. या. social worker. या. That's pretty well. Okay. Your favorite TV show? फ्रेंड्स. मतलब आई थिंक पूरी दुनिया का वही है. बट इतना इतना ज्यादा फेवरेट है कि अब भी मतलब दो तीन बार तो देख लिया होगा. अभी भी जब कार्डियो डे होता है और मैं ट्रेडमिल पे वर्कआउट करती हूँ तो टीवी लाइक मैं फोन पे फ्रेंड्स लगा देती हूँ सामने और 2 एपिसोड मतलब 45 मिनट्स. I'll try it. ट्राई. ऐसे 45 मिनट्स ऐसे निकल जाएगा एंड इट जस्ट काइंड ऑफ इतना लाइक सिटकॉम. हाँ. द सिटकॉम On फीलिंग. treadmill, हाँ हाँ हाँ. रनिंग 10 minutes निकालना is like tough for me. इज इट. बट हो जाएगा 40 मिनट्स तो पता भी नहीं चलेगा. I'll go for it. Okay. So this is really very weird and different. But what celebrity annoys you the most? अनॉइज नो बडी. मुझे अनॉय कोई करता ही नहीं है क्योंकि मैं इतना किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ कि मुझे अनॉय कर सके. All right. So यहाँ पे एक छोटा सा tongue twister खेलेंगे. Just try to speak. ओके. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस ताली का ताले उस चाबी का ताला. ओ माय गॉड. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. कितनी बारी बोलना है? बस 10 times ही बोलना. अच्छा. आई ट्राई. 3 बार हो गया Yes. वैसे. हाँ. Yes, I heard it. I heard it. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. 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 यस. ओके. One more from my side. It's in Gujarat. ओके. मुझे भी आपने सुना. श्रुतिनी पुत्री कृति, कृतिनी पुत्री श्रुति. श्रुतिनी पुत्री कृति. कृतिनी पुत्री श्रुति. बराबर. श्रुतिनी पुत्री कृति. कृतिनी पुत्री श्रुति. 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 श्रुतिनी पुत्री कृति. कृतिनी पुत्री श्रुति.
આઈ થિંક થઈ જશે હવે 6 થઈ ગયા 4 થઈ જાત હા Very nice. Because Amma always like when I do like go for anchoring and hosting, so I make them play this game. And they always like Shruti, Shruti, not Shruti, and just pick another word. All right. So a final round of our last game. It will take only 5 minutes. Which we're gonna play Never Have I Ever. ઓકે Okay. So your first question is Never have I ever cheated on test or exams. ચીટેડ ઓન Test or exams. આઈ હેવ સોરી Okay. Another one. Never have I ever made pranks on call. થેન્ક્સ ઓન કોલ Pranks કરાય on call. हाँ हाँ करा है। Wow. हाँ आपके ऊपर हुआ है कभी? मेरे ऊपर नहीं हुआ है आई हैव Okay. डन इट और आपके पीपल साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको किसी ने प्रैंक किया हो कॉल पे? एक्चुअली किया है पर पकड़े जाते हैं वो लोग You are so smart. बारी मतलब इतना somebody calls me and tell me that I am a casting director और मेरा अगर फ्रेंड होगा और वो पकड़े जाते हैं अपने इंडस्ट्री से नहीं है तो दूसरे सेंटेंस में ही पकड़े जाते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं एंड कोई भी पकड़ लेगा ऐसा वाला हाँ So never have I ever been skydiving. I haven't I want to You have. All right. Okay. Never have I ever peed in swimming pool. sorry never have I ever Peed in swimming pool. ना नेवर जब छोटे थे तब ज्यादा जा नहीं पाई समझ वही उसके बाद ही गई हूँ मॉम डैड भेजते ही नहीं थे तो दे आर लाइक काड़ी Wow. गई जैसे छोकरी एवा एवा Okay. So never have I ever screamed in a scary movie. During I a must scary have movie. I must have मैं बहुत डरपोक हूँ मतलब इस Okay. बात पे लाइक माई सिस्टर यूज टू टेक सो मच एडवांटेज ऑफ इट जब मॉम डैड जाते थे तो वो भूत बन के मुझे डराती थी एंड व्हाट नॉट मतलब और मुझे पता होता था वो नाटक कर रही है बट मैं फिर भी डरती थी मतलब Oh God. तो फिर भी आप मूवी देखते हैं? मैं अगर नहीं आपको देखती scary movie- Oh. मेरी हिम्मत ही नहीं है पर ऐसे कभी देख लिया या तो डर लगता है और वो डर फिर ऐसे 5-6 दिन चलता है तो मैं अब तो आई वाज लाइक आई नो माई सेल्फ अभी नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नेवर हैव आई एवर वो एक्चुअली बहुत सारे लोग करते हैं खास करके जो हमारे घर के आजू बाजू टीवीज होते हैं सो इट्स लाइक आस्किंग टू यू दैट नेवर हैव आई एवर स्पाइड ऑन माय नेबर्स स्पाइड ऑन माई करा है नॉट हियर लाइक हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे इस घर में उसके पहले देयर दिस प्लेस और वो एकदम Oh. टिपिकल टीनेज वाला फेस था तो बड़ा होता था ऐसा सब लड़कियां मिलके सामने देखना एक फ्रेंड है Wow. मेरी उसको सामने वाले उसके बिल्डिंग में सामने वाले लड़के पे क्रश था और उसका घर बहुत दूर था सामने की बिल्डिंग मतलब पूरे बीच में पूरा एक ग्राउंड था और सामने वो लड़का रहता था नाउ शी इज मैरिड टू हिम हाँ तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग बाइनोक्यूलर लेके उसके घर पे देखते थे कि वो क्या कर रहा है how amazing never have I ever been arrested सॉरी नेवर हैव आई एवर been arrested नॉट all right so 100 out of 100 yay all the questions. Thank you so much for being with us. Weekly Solutions ऑफिशियल के पेज पे आज आप और मैं हमें email दिलानी जो लाइव आए हैं दैट्स मी आरके श्रेया दैट्स माय पेज आरके श्रेया आप सब उस लाइव फॉलो कर सकते हैं एंड जाते जाते वो गाना है मेरे ये गीत याद ऐसे आपके व्यूअर्स आपके फैंस को आप कुछ कहना चाहते हो नहीं कुछ भी नहीं हैव फन मजे करो कीप स्माइलिंग
कोविड-19 की सिचुएशन के लिए जो फिलहाल इतना ज्यादा चल रहा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई वुड सजेस्ट बिकॉज अभी इतना एक्सट्रीम हो गया है, लाइक इनिशियल 1-2 मंथ्स वाज स्टिल फाइन, बट सब लोग एक दूसरे के साथ रह रहे, इतना फैमिलीज के साथ भी सब एक्सट्रीम, आई थिंक लोग रहे भी नहीं है कभी इतना एट अ स्ट्रेच, इतना लाइक 24 hours टुगेदर. सो जस्ट कीप काम. आपको अगर एक दूसरे की चीजें इरिटेट करने लगी हो या वो फेज, इट इज वेरी नॉर्मल. सो डोंट टेक इट के यार उसको इतना सीरियस लेवल पे मत लेके जाना. और ये टाइम चला जाएगा. सो जस्ट बी positive and happy and don't get irritated on anyone. Thank you so much. And just one word for me, Arjashriya. Beautiful. Thank you. और दोनों तरीके से, in every sense actually, looks wise, the way you talk, the way you conducted the interview, and I think the kind of the person you are overall is beautiful. That's the word for you. Thank you so much. Thank you. I'm really going to crop this and post it on my social media. Pakka. And whenever you will be here in Surat or Gujarat, we'll definitely meet for a coffee. Looking forward for this. Pakka. Anyway, thank you nice so much. talking to you. Yeah, take care. Same Bye. here. Yeah. Bye.